Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 7. In this lecture we will study about families of functions. In the previous lecture we have studied about arithmetic operations on the functions, in which we have learned 4 arithmetic operations on the functions, that are addition, difference, product and division. Then composition of functions. We have studied about the definition of composition of the functions and its domain. Then translations. In translations, we have learned about vertical and horizontal translation. Reflections, in which we have learned the reflection about x-axis and y-axis. Then stretches and compressions, in which we have learned the vertical and horizontal stretches and compressions. In today's lecture, we will study about families of curves, in which we will discuss linear functions, power functions. In power functions, we have 2 categories: the family y is equal to x raised to the power n, where n is positive integer, and the family y is equal to x raised to the power minus n, where n is positive integer. Then power functions with no integer exponents and polynomials. Functions are often grouped into families according to the form of their defining formulas or other common characteristics. In this section, we will discuss some of the most basic families of the functions. Linear functions. Linear functions are basically equations of straight lines. This is the equation of the line, y-intercept form of the line, where m is slope of the line and c is y-intercept of the line. First, we will discuss the family f of x is equal to c. Here m is equal to, in this equation, the slope is equal to 0, that is m is equal to 0. So we have f of x is equal to c. So this is basically the family of horizontal lines. When m is equal to 0, then these are horizontal lines. So this is the family f of x is equal to c, straight lines for different values of c. The family y is equal to mx plus b, b is fixed and m varying. अब यहाँ पे हमारे पास जो y intercept है, that is b, this is fixed, this is b. y intercept क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे. ठीक है, तो b यहाँ पे फिक्स है. ठीक है, m वेरी कर रहा है, यानी स्लोप्स वेरी कर रही हैं, डिफरेंट स्लोप्स की लाइंस हैं. सो दिस इज द फैमिली फॉर विच b is fixed and slopes are varying. The family y is equal to mx plus b, where m fixed and b varying. अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो स्लोप है वो फिक्स्ड है, यानी सारी लाइंस की स्लोप्स फिक्स्ड है, सेम है, बट b वेरिंग, b इज y इंटरसेप्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हर लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है. ठीक है, बट सबकी स्टीपनेस यानी स्लोप सबकी सेम है. सो दीज आर दी फैमिलीज ऑफ लीनियर फंक्शंस. नाउ वी विल डिस्कस power functions. The family y is equal to x raised to the power n. Here n is positive integer. The functions of the form f of x is equal to x raised to the power p, where p is constant, is called a power function. For the moment, let us consider the case where p is positive integer, say p is equal to n. अब हमारे पास इंटीजर्स में इवन इंटीजर्स भी होते हैं, ऑड इंटीजर्स भी होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n एंड ऑड वैल्यूज ऑफ n. तो पहले हम इवन वैल्यूज ऑफ n के लिए फैमिली ऑफ ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं.
तो ये हमारे पास फैमिली है फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n। अब यहाँ पे देखें इवन वैल्यूज के लिए आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे ग्राफ्स बेसिकली पैराबोलाज ही होते हैं, ठीक है। तो इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। The function f of x is equal to x raised to power n are even, so their graphs are symmetric about y-axis। अब ये जो हमारे पास functions हैं सारे, these are even functions। इसमें ये even functions की property को satisfy करता है, ठीक है। तो even functions क्या होते हैं? Symmetric about y-axis। तो ये जितने भी ये ग्राफ हैं power functions के with even power, ये symmetric होंगे about y-axis। The graphs all have the general shape of the graph of y is equal to x square। आप लोगों ने y is equal to x square का ग्राफ देखा है, ठीक है। तो ये जितने भी ग्राफ्स हैं इवन पावर के साथ, इन सब की शेप y is equal to x square जैसी होगी, ये सारे पैराबोलाज ही होंगे। Each graph passes through points -1 1, 0 0 and 1 1, ठीक है। ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये हमारे पास -1 1, 0 0 एंड 1 1 इन पॉइंट से जरूर गुजरेंगे, ठीक है। एज n increases the graphs becomes flatter over the interval -1 less than x less than 1। जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है, यानी ये पावर जैसे जैसे इंक्रीज करती है, हमारा जो पैराबोला है वो -1 और 1 के दरमियान फ्लैटर होता जाता है। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ब्लू वाला, देन ग्रे वाला x पावर 4 का ग्राफ है, देन x पावर 6 का ग्राफ ये येलो वाला है। तो इसमें देखें जैसे जैसे x की पावर इंक्रीज हो रही है, हमारा जो पैराबोला है वो -1 और 1 के दरमियान फ्लैटर होता जा रहा है, ठीक है। एंड स्टीपर ओवर द इंटरवल x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, ठीक है। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो पैराबोला है वो स्टीप होता जा रहा है फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड फॉर x लेस देन -1। अब यहाँ पे देखें 1 से ग्रेटर आपके पास जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, हमारा पैराबोला स्टीप होता जा रहा है। इस साइड पे भी देखें फॉर x लेस देन -1 हमारा पैराबोला जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज हो रही हैं स्टीप होता जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द पावर फंक्शंस फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n। Now let's discuss the family of graphs of power functions for odd values of n। For odd values of n, we have function y is equal to x, x cube, x power 5 and so on। अब यहाँ पे देखें y is equal to x is linear function, that is straight line passing through origin। उसके बाद जो हमारे पास पावर आ रही हैं उनका ग्राफ हमारे पास, मैंने आप लोगों को जब एक्स क्यूब का ग्राफ बताया था तो मैंने बोला था मद आ जैसा ग्राफ जो है ये एक्स क्यूब का ग्राफ होगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस फैमिली ऑफ ग्राफ्स। The function f of x is equal to x raised to power n are odd, so their graphs are symmetric about the origin। ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये सारे ऑड फंक्शंस हैं और ऑड फंक्शंस सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन, ठीक है। The graphs all have the same general shape of the graph of y is equal to x cube। तो इसमें देखें आपके पास ये जितने भी पावर्स ऑड पावर्स वाले ग्राफ्स हैं ये एक्स क्यूब की शेप के ही ग्राफ्स हैं सारे, ठीक है। ईच ग्राफ passes through the point -1 -1, this is -1 -1, 0 0 and 1 1। तो ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये इन 3 पॉइंट्स से ज़रूर
गुजरते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके प्रॉपर्टी है, एज n increases the graphs becomes flatter over the interval -1 to 1। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज इंक्रीज करेंगे हमारा जो ग्राफ है वो -1 और 1 के दरमियान फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है। एंड स्टीपर ओवर द इंटरवल्स x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, और x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 के लिए आपका ग्राफ स्टीप होता जा रहा है। सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास इवन वैल्यूज के लिए थी, ठीक है। जस्ट ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा चेंज हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस पावर फंक्शंस। द फैमिली y is equal to x raised to the power -n. If p is a negative integer, say p is equal to -n, then power function f of x is equal to x raised to the power p and have the form f of x is equal to x raised to the power -n is equal to 1 divided by x raised to the power n. अब यहाँ पे भी हमारे पास एज n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पहले इवन वैल्यूज के लिए डिस्कस करेंगे, देन ऑड वैल्यूज के लिए डिस्कस करेंगे। तो इवन वैल्यूज के लिए हमारे पास ग्राफ इस तरह से होगा। जब हम इवन वैल्यूज की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास बनता है y is equal to 1 divided by x square, 1 divided by x raised power 4 and so on। तो ये सारे ग्राफ जो हैं ये 1 divided by x square की टाइप के शेप के ग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। द फंक्शंस f of x is equal to 1 divided by x raised to power n are even, so their graphs are symmetric about y-axis। ये सारे फंक्शंस भी इवन फंक्शंस हैं तो ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। The graphs all have the general shape of the graph of y is equal to 1 divided by x square। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 1 divided by x square के जैसे ग्राफ होते हैं, सेम ये सारे ग्राफ इसी शेप में होंगे। Each graph passes through the point -1 1 and 1 1, ठीक है। तो हर ग्राफ इन दो पॉइंट से जरूर पास करेगा। As n increases, the graphs become steeper over the interval -1 to 0 and 0 to 1, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास n इंक्रीज कर रहा है हमारे पास तो जैसे जैसे हमारे पास n इंक्रीज कर रहा है हमारा जो ग्राफ है वो -1 से 0 और 0 से 1 के दरमियान स्टीप होता जा रहा है, ठीक है। आप देखें -1 से 1 के दरमियान ये स्टीप होता जा रहा है एंड बिकम्स फ्लैटर ओवर द इंटरवल्स x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, ठीक है। इन इंटरवल्स पे आपका जो ग्राफ है वो फ्लैट होता जा रहा है जैसे जैसे n की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, ठीक हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफ्स फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n। जब हमारे पास ऑड वैल्यूज हैं n की तो ये हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय x, 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब, 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ्स हैं वो 1/x की शेप के सारे ग्राफ्स होंगे, ठीक है। The functions f of x is equal to 1 divided by x raised to power n are odd, so their graphs are symmetric about origin। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ऑड फंक्शंस हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं about origin। The graphs all have the general shape of the graph of y is equal to 1/x, ठीक है। इन सब ग्राफ्स की शेप कैसी होगी, जैसे 1/x की ग्राफ की शेप होती है। ईच ग्राफ passes through the point -1 1 and
1 1, इन 2 पॉइंट से ये ग्राफ्स पास करेंगे। As n increases, the graphs become steeper over the intervals -1 to 0 and 0 to 1. सेम वही प्रॉपर्टी है कि हमारे पास 0 से 1 और -1 से 0 के दरमियान ग्राफ स्टीप होता जाएगा एज x इंक्रीजेस। देखें ये हमारे पास x 1/x के लिए है, फिर x क्यूब के लिए, देन x पावर 5, तो स्टीप होता जा रहा है इस पोर्शन में, ठीक है। एंड बिकम्स फ्लैटर ओवर द इंटरवल x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्राफ क्या हो रहा है, फ्लैट होता जा रहा है। जैसे जैसे x की पावर इंक्रीज कर रही है, हमारा ग्राफ यहाँ पे इस इंटरवल में फ्लैट होता जा रहा है। तो ये हमारे पास जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो उसके लिए ये हमारे पास फैमिलीज ऑफ ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पावर फंक्शंस विद नॉन इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब हमारे पास अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो इंटीजर पावर के साथ जो पावर फंक्शंस थे उनको हमने डिस्कस किया। इस स्लाइड में हम लोग नॉन इंटीजर पावर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन इंटीजर पावर्स हमारे पास इस टाइप की होती हैं, x रेज टू द पावर 1/n, यानी इसको हम nth रूट ऑफ x भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n, अगर हमारे पास n की इवन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास बनता है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, फोर्थ रूट ऑफ x, सिक्स्थ रूट ऑफ x एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ग्राफ सारे जो हैं ये 1 1 में से पास करते हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट x की शेप के ग्राफ्स होंगे। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट x है, तो फोर्थ रूट ऑफ x का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा हमारे पास फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से स्टीपर हो जाएगा। अगर मैं सिक्स्थ रूट ऑफ x का ग्राफ बनाऊं तो वो थोड़ा मज़ीद फ्लैटर हो जाएगा और यहाँ से पास करेगा और स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो 0 से 1 के दरमियान स्टीपर होगा, ठीक है, और 1 से ग्रेटर x की 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए फॉर x ग्रेटर देन 1 ये हमारे पास ग्राफ स्टीपर हो जाएगा, एंड फॉर 0 to 1 आपका ग्राफ जो है वो फ्लैटर होता जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट x की टाइप के ही ग्राफ्स होते हैं सारे। नेक्स्ट ऑड वैल्यूज़ के लिए जब हम डिस्कस करते हैं तो ऑड वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो क्यूब रूट ऑफ x की टाइप के ग्राफ होते हैं, उसकी शेप के ग्राफ होते हैं, ठीक है, और ये हम पहले बेसिक ग्राफ्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है उसका इन्वर्स फंक्शन है, उसका इन्वर्स ग्राफ है। आगे हम इन्वर्स फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास क्यूब रूट का ग्राफ है तो आपका जो फिफ्थ रूट का ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैटर होगा और यहाँ पे स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली आपके पास है -1, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ पे फ्लैटर होगा और यहाँ पे स्टीपर होता जाएगा, ठीक है। तो सेम शेप का ही ग्राफ है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाले सारे फैमिलीज ऑफ ग्राफ्स हैं ये 1 1 पॉइंट एंड -1 पॉइंट से पास करते हैं, और जैसे जैसे हम पावर्स इंक्रीज करते हैं, पावर्स नहीं, हम n की वैल्यूज़ जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास फ्रॉम 0 to 1 क्या आप कह सकते हैं -1 से लेकर 1 के दरमियान ग्राफ फ्लैटर हो जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि y की वैल्यूज़
के लिए हमारे पास -1 से 1 के दरमियान ग्राफ फ्लैटर हो जाता है, एंड इससे जो ऊपर है फॉर वैल्यूज ऑफ y ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1, ये जो हमारे पास ग्राफ्स हैं ये स्टीपर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की बहुत सी एक दो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉमन है। ये भी हमारे पास जो है 1 से पास करता है, 0 और 1 के दरमियान हमारा ये ग्राफ फ्लैटर होता जाता है जैसे जैसे हम x की वैल्यूज इंक्रीज करते हैं, और फॉर y ग्रेटर देन 1 ये हमारे पास स्टीप होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। A polynomial in x is a function that is expressible as a sum of finitely many terms of the form cx raised to the power n, where c is a constant and n is non-negative integer. Some examples of polynomials are these. Polynomials हमारे पास कुछ finite terms का sum होता है, और वो terms किस टाइप की होती हैं? c x रेज टू पावर n, यहाँ पे c कोई कांस्टेंट है और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस टाइप के ये डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, ये सारे हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अ जनरल पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज दिस, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, जिसमें x की पावर्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, और साथ में कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। The constants c0, c1 up to cn are called the coefficients of the polynomial. When a polynomial is expressed in one of these forms, the highest power of x that occurs with a non-zero coefficient is called the degree of the polynomial. अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? हमारे पास जो हाईएस्ट पावर टर्म होती है वो हमारे पास बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब अगर हम इन पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। सो दिस इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, एंड दिस इज 0th डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है, हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, एंड दिस इज 7th डिग्री पॉलिनोमियल। Polynomials of degree 1, 2, 3, 4 and 5 are described as linear, quadratic, cubic, quartic and quintic respectively. जिस तरह से हमारे पास ये देखें, इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, जिसके ग्राफ्स हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होते हैं। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक, जिसके ग्राफ्स हमारे पास पैराबोलास होते हैं। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, जिसके ग्राफ्स हमारे पास मद आ की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज क्वार्टिक, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज क्विंटिक, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट इनके नाम आते जाते हैं। ठीक है, द नेचुरल डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन x इज -∞ to ∞। पॉलिनोमियल्स हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होते। सो इनकी डोमेन्स क्या हैं? ऑल रियल नंबर्स। तो अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करते हैं। दिस इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इज पैराबोला। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास मद आ की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। अब हम इनको जरा सा डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ पे नोटिस किया दिस इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे आपकी जो इनकी पीक और वैली आप कह लें वो 1 है। ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इनकी पीक और वैली आपके पास 2 है। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल की पीक एंड वैली आपके पास 3 है। फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल की पीक्स और वैली आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। यानी जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उनके उसमें पीक्स और वैलीज उससे कम होती हैं। ठीक है,
तो अब हमारे पास हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स की जो टेल्स हैं या आप कह लें जो एंड्स हैं वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगी या दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी कि अपवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगा, ठीक है। अभी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी दोनों टेल्स क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करती हैं, ठीक है। और हमारे जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैं यानी ये थर्ड डिग्री और फिफ्थ डिग्री, इनकी जो टेल्स हैं यानी एंड्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इंक्रीज करती हैं, ठीक है। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है, ठीक है, एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है। और इवन डिग्री के लिए दोनों या तो अपवर्ड होंगी या दोनों डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हमारे पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज मैं एक रैंडम इवन डिग्री पॉलिनोमियल लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर एक्स स्क्वायर या जो भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है, आपके पास सिक्स डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके साथ अगर प्लस का साइन है तो इसके जो टेल्स हैं वो दोनों अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर माइनस का साइन है तो दोनों टेल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास ये अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, ठीक है। सेम अब यहाँ पे हमारे पास अगर और डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं तो उसमें अगर उनकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो हमारा जो राइट टेल है वो अपवर्ड इंक्रीज करेगी और जो लेफ्ट टेल है वो डाउनवर्ड इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो ये रिवर्स हो जाएगी चीज़। आपके जो ग्राफ है उसका राइट टेल डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी नीचे की तरफ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाली टेल है वो अपवर्ड इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं पॉलिनोमियल्स की जो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। दीज आर सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, तो इसको आप लोग सॉल्व करें। इसमें कहीं कोई मसला आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप फिर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।